foremost, I really appreciate each one of you. This being the middle of the week and it is late in the evening, you all have probably fasted for 2 hours before being here. I promise you, and that from our team side, we will try to make each and every moment count so that it is of great value to you. Already in the information, you have heard that we are going to be having a special session on pranayam today, and that's going to help you tremendously, especially during these cold winter months. Also, with all the ailments that are around us nowadays, this is going to really, really help you today. Now, let me start with a few words about Rapid Mile. Rapid Mile has been in the business of helping people take charge of their lives since 2001 2002. At first, they were involved with sharing the training, and in fact, they were the pioneers of teaching people the Silver Ultramind course. A little later, around 2004, they shifted their focus to the law of attraction. And since then, they have taken many trainings across the length and breadth of this country. Through their workshops, Rapid Mile has trained many, many people, thousands of people on the law of attraction, and in fact, over 150 trainers also. It is during this lockdown period that this whole training scenario has changed so much. And we are so happy and pleased that we can take all of this online and reach you in the comfort of your home. And we also can sit wherever we are, safe and sound, and share with you whatever we know and hope that it touches your life in some way or the other. I want to introduce our team to you today. Mr. Shaz Kamer is the managing director of Rapid Mile. Um, I am Dr. Anila Damodar, and I teach the law of attraction. But today, a very special person is going to be taking the training, and he is a wonderful member of our team, Sri Balram Talreja. You all must know him for many, many years now because he has been touching your lives in so many special ways. Sri Balram Talreja is a yoga expert, an expert on pranayam, on EFT. He just concluded a workshop over this weekend. He's also an expert in Ho'oponopono. Over the last 30 years, he has taken numerous trainings across the country and also abroad. The count is in thousands, and it's still going on. So I'm going to hand this session over to Mr. Balram Talreja now. Please go ahead, sir, and teach us about pranayam. Thank you. Thank you so much, ma'am. Thank you, Thank you. Dr. Anita. My Before we pleasure. start the session, everybody, we will be in the silence mode for some time. Very gently close your eyes, be straight. Your body has to be kept straight, relaxing and steady. शरीर को बिल्कुल सीधा, स्थिर और शिथिल रखें. आंखें कोमलता से बंद कर लें. And now pay your attention to your both the nostrils. Be aware about your breathing. सांसों के प्रति दोनों ही नासिकाओं के छिद्रों पर जागरूक रहें. सांसों के प्रति सतर्क रहें. साक्षी, तटस्थता का भाव. Be complete aware about your breathing. Relax forehead. No facial expression. Keeping the body straight, relaxed and steady. Now get closer to your breathing. सांसों की नजदीकियों को बढ़ाते चलें. इतने करीब अपनी सांसों के चले जाएं. Get closer to your breath in such a way that you can feel the thermal sensation of this breath now. That's coolness of every breath going in and the warmness of the every breath going out.
हर सांस जो आ रही है उसकी ठंडक और बाहर जाती हुई सांस की गर्माहट को दोनों ही नासिकाओं के छिद्रों पर फील करें, महसूस करें। सांसें जिनके प्रति सभी सतर्क हैं, यू आर कॉन्शियस अबाउट योर ब्रीदिंग, गेटिंग स्लोअर, सांसें मंद होती हुई, पतली और शिथिल। और सांसों के साथ जुड़ा है मेरा मन, जो शांत होता हुआ, डीप साइलेंस, शांत शांत शांत। Now very slowly open your eyes. Welcome to all of you to this session on pranayam. I am fortunate enough, the pioneer, for me to take to the spiritual world where I have become from zero to hero. Damayanti Ben Bodhana, I'll let her call her to say a word for me. Today's topic is pranayam for immunity increasing. Very proudly I can say my teacher is with me today. 30 years back, I was a member of the health club. He only suggested me one very good course on pranayama and meditation being taught in the nearby vicinity every Sunday for 12 sessions. Instantly I joined, and the very first day when I did Kapalbhati pranayam, on the moment instantly I felt as if something heaviness is being coming down. I was so much attracted in the same session. I decided that this is the right place for me where I can really bring a dramatic change in my life which I was aspiring for. All these 30 years, I have been imparting my knowledge absolutely on the godly service for the world across, and pranayam and asanas I practice very regularly along with meditation. Today we'll be talking about pranayam for the immunity increasing. The screen you can see here. Shadway, can you put the number on the screen? Sure, give me a moment. Yeah, sure. See, in this image, you will find that immunity increasing parameters lie in the entire body. See, entire body with a different system designed by the universe. They really protect you from the infections coming in the different forms. Whenever any person falls sick, that means his immunity system or her immunity system was not able to fight those viruses, and will fall sick. In this corona era, everywhere the people are more aware and conscious to keep their immune system high. See all these different things what you can see in our body, connect with the different systems in the body, they all contribute to fight the virus in the different forms. अगर हमारे शरीर की इम्यूनिटी लेवल कम हो जाती है, then we definitely get that virus in the form of cold, in the form of whether it is bacterial infection, fungal infection, or any type of infection. So we shall start with pranayam. In the beginning, what I've been doing for more than 33 years now, every morning when I get up for my meditation practices,
before consuming 2 glasses of water, I definitely, after cleaning my teeth, I do this beginning of opening the nostrils, which is called, shall we, next slide please. See, the very first pranayam, we'll see it here, it is a nasal passage cleaning. See, these are there are two nostrils we have in the nose. From here, the air goes in and the carbon dioxide comes out. Oxygen goes in. If we keep the entire respiratory system more efficient, then definitely what we inhale through in the pranayam, what we inhale, the oxygen, which purifies your blood, and the blood goes to the entire body. And wherever the blood is full of oxygen, the every single system, the every single organ of the body gets lot of nutritions, and every system becomes very efficient. So prana is, to the modern man, what electricity is. Without electricity, we can't think of the life, and without prana, we cannot think of our life. Our existence is depending on the totally prana. Now, whenever we do the deep breathing along with oxygen, the prana goes in. Prana is that vital force which always keeps you in the vibrant mode, highly enlightened mode. जहाँ प्राण कुपित हो जाते हैं, wherever the one goes into the negativity of the life, fear, anxiety, whatever form it is, resentment, grief, guilt, that time your breath rate becomes very high. That time neither the proper oxygen can go inside nor the detoxification in the form of the carbon dioxide. I can say that 80% of our toxin of the body, which nature has made 4 different ways: mal, mutra, pasina, and carbon dioxide. Out of that 80%, the removal of toxins from the body, the nature has made the means of breathing. देखिए, हर पल हम सांस लेते हैं, छोड़ रहे हैं. प्राणायाम जब हम करते हैं तो वी आर कॉन्शियसली doing certain pranayam techniques. It may be the different cleansing processes. So we shall start directly. First of all, we are taking nasal passage cleaning. हमारे सांसों के अंदर जाने का जो रास्ता है, ये दोनों ही नॉस्ट्रल्स हैं. अगर हम हर रोज उनको इस टेक्निक से, by this technique, when we cleanse both the nostrils alternatively, you will find that the more we are able to detoxify our body with carbon dioxide, the more oxygen can enter, and oxygen carries the pran with it, which is very much important for our life to have the blissful life and a completely contented life. So now take your right hand up. Take your right hand up. Close your fist. Take the thumb out and close your right nostril. Close your eyes. And now constantly you have to exhale out from the left nostril, maybe 10, 15, 20 or 25 times. The condition is that you should be doing it with the utmost ease. अगर आपको कहीं भी ज्यादती लगती है तो आप रुक सकते हैं 10 के बाद में 15 पे, या wherever you are comfortable, we'll go up to 25. Yes, close your eyes. Right nostril close. The left nostril, the frictions found, you have to constantly take the air out. Start. Mouth closed. Yes. Relax. Now take your right hand down. In the morning time when you do this exercise, it might bring some mucus of your nose. So you have to wipe it out with a napkin or the water. Now the same we'll be repeating with the left hand, nostril closed. So take your left hand up, close all the 4 fingers, take the thumb out, close the left nostril, eyes closed, be very straight, don't take the support at the back. Since most of you are sitting on the chair, so no support at the back is rather advisable. Left nostril close, eyes closed, mouth closed. अगर करते करते आपका मुंह खुलने लगता है, that means you are exerting yourself. Your mouth has to kept shut
throughout the practices, whatever number of strokes you are comfortably taking from this, at least 10 strokes you can take. We'll go for 20. Wherever you are comfortable, you continue with me. Start. Relax. Now take your left hand also down and relax. This is just the beginning. Every morning, if you start with this very simple technique, this is not a pranayam. This is a kriya, nasal passage cleansing, where we clean our both the nostrils alternatively, and with this, lot of carbon dioxide comes out in the form of exhalation, and here the inhalation even being silent, even being passive. The oxygen goes inside, and when both the nostrils are opened out, breathing becomes quite easier. I'm telling you one thing more over here. Our blocks in the heart starts at the age of 7. Keep on building the blocks, but we become aware about that when we got some angina, chest pain, or some heart problem. That means our heart is already blocked to 70%. But this particular practice every day keeps on opening the arteries closeness, and apart from that, ये नए blockages को आने से रोक देती है. You are curing it also, and you are preventing also. Now we'll start with the very first number pranayam, which is called Kapalbhati. Kapal means facial, mastak. Bhati means shina. It starts the forehead shining. That means your all the mental faculties, concentration, memory power, sharpness of the mind, and all the mental faculties gets enhanced with this pranayam. Kapalbhati pranayam is the forceful expulsion from both the nostrils, where every exhalation is consisting of the frictional sound from both the nostrils. जैसे हमारा नाक भर जाता है और हम उसको साफ करते हैं, तो हम क्या करते हैं, नाक को दोनों उंगलियां यहाँ रख के और नाक को सिकोड़ते हैं. You can hear my sound. It is a frictional sound. The same sound has to be produced by doing this Kapalbhati pranayam. Kapalbhati is not a pranayam, though Ramdev calls this as a pranayam. But Kapalbhati is basically one of the 6 cleansing processes in yoga, जिसको हम कहते हैं षट कर्मास. It is one of the karmas, one of the cleansing process. Anyway, keep aside the name. Constantly throwing the air out from both the nostrils at the speed of 60 strokes per minute, where exhalation is active and inhalation is passive. Kapalbhati is known to be an abdominal breathing. जो व्यक्ति हर रोज अपनी एब्डोमिनल ब्रीदिंग को सक्रिय करता है बाय कपालभाति, नाभि चक्र, navel chakra, and behind that is the solar passage chakra, the much center of tension emotion. आप अगर अपने आप को किसी भी डर से दूर रखना चाहते हैं तो कपालभाति द मास्टर की. It activates that chakra, Manipur chakra, which is the center of fear. I'll show you first, then we should be doing collectively. देखिए कपालभाति में मैंने आपको पहले फिर से बता दूं कि जो भी मेरे साथ प्राणायाम कर रहे हैं, मेक इट श्योर कि आप सभी खाली पेट हैं इस वक्त. फुल मील अगर आपने लिया है तो उसके 4.5 घंटे बाद प्राणायाम किया जाता है. अगर हल्का नाश्ता किया है, लाइट ब्रेकफास्ट, तो यू कैन डू द प्राणायाम और आसना आफ्टर 2 hours. Here we had already intimated you, so I am damn sure that you all must be with the empty stomach. अगर आपने खाना खा के कोई बैठा है गलती से भी, तो प्राणायाम को करने के पहले यू जस्ट चेक योरसेल्फ इफ यू आर एक्चुअली. करना तो नहीं चाहिए, पर सीखने की दृष्टि थोड़ा बहुत आप कर सकते हैं. सी नाउ, exhalation forceful from both the nostril with a frictional sound with a speed of 60 strokes per minute. Inhalation is silent, automatic and passive. लगातार ही दोनों नासिका से घर्षण का आवाज करते हुए सांसों को बाहर फेंकना कपालभाति कहलाता है. कपालभाति इन द एवरीडे प्रैक्टिस हैज टू बी डन फॉर 5 minutes, 300 strokes. धीरे धीरे इसके अभ्यास को बढ़ाते जाएं. यहाँ पर हम 3 साइकिल्स लेंगे एंड ईच साइकिल विल बी कंप्लीटिंग
with 20 strokes, right? पहले मैं आपको थोड़ा दिखा देता हूं. नो फेशियल एक्सप्रेशन. आप देख सकते हैं यहाँ चेस्ट का मूवमेंट बिल्कुल नहीं होना चाहिए. दिस इज एब्डोमिनल ब्रीदिंग, बैली ब्रीदिंग होता है कपालभाति. सी दिस. सर भारी ना होने पाए, चक्कर ना आने पाए. If you feel any difficulty, that means you in this moment are not capable of doing this Kapalbhati. Everything while doing Kapalbhati, if you are absolutely at the effortless ease, rather you are not strained or exhausted or finding any difficulty, that means you are fully eligible in this moment, whatever the diseases you might have got in this moment also. क्योंकि वैसे कपालभाति बताते हैं कपालभाति जिनको ब्लड प्रेशर हो नहीं करना चाहिए, या फिर कोई भी हार्ट से संबंधित प्रॉब्लम है, तो वन हैज टू बी वेरी केयरफुल अबाउट द कपालभाति. सो रेडी, विल बी गोइंग फॉर 3 साइकिल्स ऑफ कपालभाति, 20 स्ट्रोक्स ईच. ध्यान रखना जहां भी रिदम टूटता है, wherever you feel that you are not able to maintain the rhythm of this process, then that means you are exerting, you are overdoing, so you are not to do that. But 20 I think everybody can do with me. Okay, eyes closed, be straight again. Start. Relax. If anybody finds it here that you get disturbed with this, आपके सर में कुछ भारीपन आ रहा है, या you are not able to do this effortlessly, that means either you are not doing it correctly or something else is coming to restrict you in this moment to do this Kapalbhati. Okay, is everybody fine? Can we do for the next 2 rounds? Put in the chat box, please. Yes. Yes. Okay, now we'll be going for 2 more rounds in Kapalbhati. Eyes closed. Eyes closed. Now pay the attention to your Muladhara chakra. At the anal region, if you pay the attention and do the Kapalbhati with a speed of 60 strokes per minute, the speed with which I am doing, because generally the people keep on running with Kapalbhati and it gives lesser effect. This is the master key for your oral health. Kapalbhati, if you do for every day for 5 minutes, it really can take care of your entire body's well-being. Yes. Start. Again, 20 strokes. We are going for the second cycle of this Kapalbhati. Relax. Here you can see there is no movement on my chest side. अगर आपकी चेस्ट में मूवमेंट आता है, दैट मीन्स यू आर इनहेलिंग इन बिटवीन, which is not the correct procedure for Kapalbhati. Kapalbhati only exhaltions are active. सांस को बाहर छोड़ने की क्रिया है एक्टिव यहाँ पर, और लेने की क्रिया जो ऑटोमेटिक होती है. अगर आपकी जरा भी चेस्ट हिलती है या बीच में सांस ले लेते हैं या आपका रिदम बिगड़ जाता है, सी दिस राइट थिंग. इफ यू डू लाइक this sound is not at all advisable for Kapalbhati. Okay, now we are going for the next pranayam. Kapalbhati के जो फायदे होते हैं, इट इज ए यूनिक ब्रेन टॉनिक. आप कितनी भी लंबी उम्र जी पाते हैं, इफ यू वांट योर concentration power, your memory power, because with this Kapalbhati the blood to the brain goes 6 times more than normal. It is fully charged. It's called a unique brain tonic. Kapalbhati change the diaphragm into a heavy duty pump. Diaphragm is the main respiratory muscle. When we exhale, see this is the diaphragm. Above this there is the chest, and below this is the abdominal. See this. With every stroke of Kapalbhati, diaphragm comes up, and here both my lungs are situated. Once I take a single stroke in Kapalbhati, detoxifies सारी जो रेसिडुअल एयर है आपके ट्रैकिया विंड पाइप में या लंग्स में, वो सारी बाहर आ जाती है
और फ्रेश ऑक्सीजन साइलेंट इनहेलेशन में भी अंदर जाती है। नाउ वी गोइंग फॉर द नेक्स्ट प्राणायाम विच इज कॉल्ड भस्त्रिका। भस्त्रिका इज द चेस्ट ब्रीदिंग। भस्त्रिका वर्क्स, देखिए हमारे शरीर में इम्यून सिस्टम अगर किनका कमजोर है, मतलब दे frequently fall sick because when your body is warmed up, that time the blood circulation becomes very proper in your body. देखिए बरसात के दिनों में सूरज निकलता नहीं है कई दिनों तक, तो वातावरण में इंबैलेंस होता है दोनों नॉस्ट्रल्स का। कूल लेफ्ट नॉस्ट्रल एंड द राइट नॉस्ट्रल इज कॉल्ड द वार्म नॉस्ट्रल। तो भी बरसातों में सबसे ज्यादा लोग बीमार पड़ते हैं। अभी ठंडी का प्रकोप चल रहा है, ठंड ज्यादा है वातावरण में, गर्मी कम है। विदेशों में देखा है कि वहां फिर से कोरोना के केसेस बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं, और यहाँ भी दिल्ली में ठंड होने की वजह दिल्ली में केसेस बढ़ रहे हैं। वी बॉम्बे इट इज हैविंग द लेस इफेक्ट ऑफ द कोल्ड सीजन, वी आर लेस अफेक्टेड हियर। तो जितना ज्यादा आप अपने शरीर को वार्म रखोगे उतना ही ज्यादा आप बॉडी के ब्लड सर्कुलेशन को मींस सप्लाइंग द ऑक्सीजन टू एवरी सिंगल रादर यू कैन द सेल टिश्यू ऑर्गन एंड द सिस्टम्स आप सप्लाई कर पाओगे। भस्त्रिका से पूरे शरीर में गर्मी आती है। वात पित्त कफ से उपजने वाले 140 प्रकार के रोगों का शमन भस्त्रिका से होता है। छाती में बलगम है वो भी इससे पिघलता है। ये देखिए मैं आपको भस्त्रिका से डबल एक्शन वेयर एक्सहेलेशन एंड इनहेलेशन बोथ आर एक्टिव। वी स्टार्ट विद एक्सहेलेशन, both are same, then inhalation equal with the friction sound both the time so that our chest can be lifted up easily. यहां पर पेट का मूवमेंट नहीं के बराबर होता है, पूरा मूवमेंट चेस्ट पर आ रहा है। अर्लियर व्हाट वी डिड कपालभाति टू द एब्ली ब्रीदिंग, नाउ लुक एट माय चेस्ट, डबल एक्शन है। स्टार्ट विद एक्सहेलेशन देन इनहेलेशन, एक्सहेलेशन इनहेलेशन, थोड़ा पॉज बीच में लेना है और दोनों को इक्वल रखना है। एक्सहेलेशन एक्सहेलेशन इनहेलेशन। जैसे कलाई करने वाला ब्लैक स्मिथ लोहार अपने पास में रखे हुए भट्ठी को जब तपाता है तो अपने पास में रखे हुए गुब्बारे को वो जैसे ही फैलाता सिकुड़ता है तो जो कोयले में जो चिंगारी लगी हुई रहती है वो आग की लपटों में भभूत उठती है। द सेम थिंग वी सी इन आवर बॉडी। तो जितने भी प्रकार के रोग हैं वात पित्त कफ से उपजने वाले, उन सब में भस्त्रिका जो है बहुत ज्यादा मदद करता है। भस्त्रिका हमारे हवा के छिद्रों में जो 20 लाख होते हैं और 21,600 बार खुलते बंद होते हैं। जब हम सांस लेते हैं तो ये क्या होता है, छिद्र खुलते हैं और सांस छोड़ते हैं तो खुद छिद्र, हवा के छिद्र, एयर सैक्स दे गेट क्लोज। तो ये 21,600 बार दिन में खुलते बंद होते हैं। लेकिन उम्र के बढ़ने से एज वी एडवांस द एज दीज एयर सैक्स बिकम क्लोज। उसके बाद हमको क्या लगता है कि उम्र बढ़ रही है, अब मैं थकान आ रही है, मैं अब ज्यादा काम नहीं कर सकता। लेकिन आई एम टेलिंग यू फॉर द लास्ट 30 ईयर्स मैंने अपनी जिंदगी में एक भी दिन उम्र का बढ़ते हुए नहीं देखा है। ऑल द टाइम वाइब्रेंट, बबलिंग विद एनर्जी आई फील विद दीज प्रैक्टिसेस रेगुलरली। सो सी नाउ भस्त्रिका डबल एक्शन, स्टार्ट विद आउट देन इनहेल, in between some pause after every exhalation inhalation, both the times you have to make the sound from here. Yes, you see me, then we'll be doing collectively. Look at my chest and my sound. Relax. इसमें हम शुरुआत में सिर्फ 5-5 स्ट्रोक के 3 राउंड खेलेंगे, क्योंकि अगर आपको थोड़ा भी हार्ट का प्रॉब्लम है या फिर आपको बीपी है तो ये अगर आपने पहले नहीं किया है तो दिस माइट गिव यू सर्टन डिफिकल्टी या यू कैन से अनइजीनेस। तो हम इसको 5 ही स्ट्रोक लेंगे। आइस आंख को खोल के रखोगे तो आप मुझे देख सकें। स्टार्ट विथ एक्सहेलेशन, बोथ द थिंग्स आर एक्टिव। एक्सहेलेशन इनहेलेशन, पॉज इन बिटवीन, स्टार्ट। Relax. Kapalbhati was abdominal breathing. Acidity, diabetes, constipation, indigestion के लिए बहुत ही लाभदायक होता है कपालभाति। एंड भस्त्रिका इज वेरी गुड फॉर अवर लंग सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम। ऑफ कोर्स डायफ्राम इज आल्सो पार्ट ऑफ अवर रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब हम आगे चलते हैं और एक प्राणायाम की तरफ। बहुत ही सुंदर प्राणायाम है ये, इसको हम कहते हैं रिफाइनिंग।
रिफाइनिंग प्राणायाम, व्हाट वी डू इन दिस, रोजमर्रा के जिंदगी में मुझे कोई दुख है, चिंता है, भय है, नाराजगी है, या आई एम रेस्टलेस, आई एम डिप्रेस्ड, आई एम अंडर द ट्रॉमा, मैं जिंदगी में सब बहुत ज्यादा तनाव से गुजर रहा हूं, उस समय हमारी सांसें जो हैं वो बहुत ज्यादा बिगड़ जाती हैं, सांसें तेज चलने शुरू होती हैं, और तेज सांसें चलने से न तो ऑक्सीजन अंदर जा पाता है, न प्रॉपर कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आ पाता है, एंड द एंटायर बॉडी, ऑल द सिस्टम गेट अफेक्टेड। तो अब ये प्राणायाम जो बता रहा हूं, इट इज अ वंडरफुल प्राणायाम जो आपके मन को ऑन द स्पॉट स्थिर करता है। वंस यू डू दिस प्राणायाम, it's a 1 minute pranayam where we take the single breath in 5 different this inhalation. One single inhalation is consisting of five compartments of this, like this: 1, 2, 3, 4, 5. Then we hold and throw the air out from the mouth. This way we complete this in 12 times in a minute's time. This is called the 1 minute pranayam. आप कितने भी बूढ़े हो जाओ, आपकी शारीरिक क्षमता कितनी भी कम हो, बट विद दिस प्राणायाम इन 8 days यू कैन फाइंड द मिरेकल। जो व्यक्ति 10 मिनट चल नहीं पाता है, आफ्टर दिस प्राणायाम ही स्टार्ट वॉकिंग इवन फॉर हाफ एन आवर। सच ए वंडरफुल प्राणायाम इज दिस। हियर वी एक्सेल आउट फ्रॉम द माउथ, दिस केयर हैज टू बी टेकन। आई विल शो यू। एक सांस के 5 टुकड़े, थोड़ा रुकना है, पॉज मोमेंटली, और फोर्स के सांस को बाहर फेंकना है। 1 मिनट के ये प्राणायाम होता है, 12 रिपीटेशंस होते हैं। इवन इफ इन द बिगिनिंग यू आर एबल टू डू ओनली 6 or 3, नथिंग रॉन्ग इन दैट, बट दिस, क्योंकि हम फोर्स के सांस को बाहर फेंकते तो हमारे रहे हुए जो इमोशंस हैं, नाराजगी है, दुख है, भय है, चिंता है, उदासी है, इवन दैट कम्स आउट। प्राण मन ही है। अगर हम प्राण को बाहर निकालते हैं तो जो ठहरा हुआ मन है वो भी बाहर उससे मतलब रिलीज हो जाता है। सीरियस, आई विल शो यू। एक राउंड मुझे देखो, फिर आप मेरे साथ करोगे, मैं कमेंट्री दूंगा आपको। ये देखिए, मैंने हाथ का एक्शन किया, आपको नहीं करना है। अब आपको मेरे साथ करेंगे सभी 6 राउंड, मैं आपको कमेंट्री दूंगा। आपको क्या करना है, ध्यान से सुने सभी। आपको एक ही सांस के 5 टुकड़े लेना है। अ सिंगल ब्रेथ कंस्टिट्यूट्स हियर ऑफ 5 इनहेलेशंस। एक ही सांस के 5 टुकड़े, रुकना है, फुर्सत सांस को बाहर फेंकना है। आंखें बंद करो सभी, स्टार्ट। वेरी स्लोली, 1, 2, 3, 4, 5, होल्ड, आउट, 1, 2, 3, 4, 5, रोको, मुंह से सांस को फेंको बाहर, 1, 2, 3, 4, 5, होल्ड, आउट, 1, 2, 3, 4, 5, होल्ड, आउट, 1, 2, 3, 4, 5, होल्ड, आउट, 1, 2, 3, 4, 5, होल्ड, आउट। लास्ट राउंड में मैं आपको करके दिखाता हूं, आप मेरे साथ करोगे। Relax. With this pranayam, it's as its name suggests, refining. If you are stuck up anywhere in the life, that means your mind is not tuned up in this moment. So this pranayam very easily takes you to the calmness of the mind. कई बार आपका मेडिटेशन नहीं लगता है, कंसंट्रेशन का पावर आपका बहुत कम होता है। दैट टाइम दिस प्राणायाम करने के बाद आप अगर साइलेंस में बैठोगे तो यू कैन एक्सपीरियंस द डीप साइलेंस आफ्टर दिस प्राणायाम इंस्टेंटली, और मिरेकुलसली यू कैन एनहेंस योर लंग्स कैपेसिटी, यू कैन एनहेंस योर, इसमें वी यूज द हिडन, वी यूज द लोअर पार्ट ऑफ द लंग्स विच वी नेवर यूज, क्योंकि हमारी सभी की सांसें शैलो होती है। पर यहाँ पर we tap the unusual, we tap the untapped potential of the lungs, जिसको हम लोअर लोब ऑफ द लंग कहते हैं, जिसके वजह से हमारी जो कैपेसिटी है लंग की बढ़ जाती है। इसके बाद हम करने जा रहे हैं बहुत ही सुंदर प्राणायाम, अनुलोम विलोम नाड़ी शोधन प्राणायाम। ये प्राणायाम आपकी बाईं नासिका और दाहिनी नासिका के फ्लो को बैलेंस करता है। अनुलोम विलोम नाड़ी शोधन, द this pranayam in everyday practice, if you do it 5 minutes and you make the balance of both these nostrils, the pranas start flowing in the Sushumna Nadi, the centralized channel, which gives you the, in true sense,
the effect of spiritual in your life, the divine intelligence you start getting with this pranayam. So in this, what we do, Anulom Vilom Pranayam, close the right nostril and inhale from the left nostril. Just count 1, 2, 3 or 1, 2, 3, 4. Inhale from the left nostril very slowly, then close the left nostril and exhale from the right nostril more than inhalation. That is, if you inhale for 3 counts, you would exhale for at least 4 to 5 or 6 counts. Again, you inhale from the right nostril, जहां से हम बाहर आए वहीं से अंदर जाएं. राइट नॉस्ट्रिल को बंद करें, लेफ्ट नॉस्ट्रिल को ओपन करें एंड देन एक्सहेल फॉर द लेफ्ट नॉस्ट्रिल. अगेन रिपीट करें अपने आप. क्लोज द राइट नॉस्ट्रिल वेरी स्लोली बाय काउंटिंग 1, 2, 3, 4. इनहेल बिना आवाज के साइलेंटली. क्लोज द लेफ्ट नॉस्ट्रिल वेरी जेंटली, क्लोजली, वेरी जेंटली. एक्सहेल फ्रॉम द राइट नॉस्ट्रिल विदाउट साउंड. सांस को धीमी लेना है. राइट नॉस्ट्रिल से सांस को लें तो राइट को बंद करें और लेफ्ट से सांस को छोड़ें. Please continue on your own for at least 4 more rounds you go. Inhale from left, exhale from right. Inhale from right and exhale from right. This is a serene breathing, this is the tranquil breathing जो आपके बॉडी में पैरासिम्पैथिक सिस्टम को अराउज करती है, आपके तनाव को दूर करती है, आपके स्ट्रेस को कम करती है और जिससे आपकी इम्यूनिटी लेवल को सबसे ज़्यादा बिगाड़ने वाला होता है स्ट्रेस. लेकिन ये प्राणायाम आपको डी स्ट्रेस करता है, आपको हल्का करता है, आपके चक्रास को बैलेंस करता है, आपके हार्मोन्स को बैलेंस करता है. सो मेनी एडवांटेज ऑफ दिस प्राणायाम्स आर देयर. द लास्ट विल बी टेकिंग ऑफ दिस प्राणायाम अनुलोम विलोम. रिलैक्स. जो व्यक्ति हर रोज इस प्राणायाम को करता है, दोनों ही नासिकाओं को बैलेंस रखता है, क्योंकि एक नासिका अगर ज्यादा चली तो आपको सर्दी होगी होगी. लंबे समय तक अगर लेफ्ट से ज्यादा चलेगी, 1.5 घंटा ये चलती है, फिर ये चलती है, फिर ये चलती है, फिर ये चलती है. अगर एक नासिका, इफ द सिंगल नोस्ट्रिल कंटिन्यूज फॉर ए लॉन्गर टाइम, दैट मीन्स गोइंग टू फॉल सिक. अगर आपकी लेफ्ट नोस्ट्रिल ज्यादा चलेगी तो आपको अस्थमा हो सकता है. अगर आपकी राइट नोस्ट्रिल ज्यादा चल रही है तो आपको डायबिटीज या फिर ब्लड प्रेशर हो सकता है. इसको अगर डिटेल में आप जानना चाहें तो मेरे यूट्यूब में बलराम तलेजा के नाम से हर तरह आप नाम टाइप करो तो यू विल गेट द वेरी मच डिटेल्स ऑफ दिस प्राणायामास. नाउ वी आर गोइंग फॉर द नेक्स्ट प्राणायाम, जिसको हम कहते हैं डीप ब्रीदिंग. 2 अलग अलग तरीके से हम लेंगे यहाँ पर. ये दोनों ही प्राणायाम आपकी इम्यूनिटी लेवल को बहुत 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 ज़्यादा बढ़ाते हैं, बहुत ज़्यादा बढ़ाते हैं. पहला प्राणायाम है भ्रामरी प्राणायाम. हमिंग बी साउंड इसमें निकालते हैं, धीमी गहरी सांस लेते हैं, दोनों ही कानों के उठे हुए पर्दों को जोर से बंद करते हैं और फिर ये हमिंग बी प्राणायाम आपके गले से लेकर आपके टॉप ऑफ द हेड तक इफेक्ट डालता है. थायराइड है, पैराथायराइड है और यहीं पर ही सिचुएटेड हमारा साइनस सिस्टम होता है यहाँ पर. तो ये सभी के सभी वहाँ की जो नसें खुल जाती हैं, आपकी नींद बहुत गहरी होती है भ्रामरी प्राणायाम से. और जो व्यक्ति गहरी नींद ले पाता है उसका इम्यून सिस्टम बहुत अच्छा रहता है. यस, आई विल शो यू. पहले सांस को बहुत धीरे धीरे लेना है, मोमेंटरी पॉज करना है. कान के दोनों उठे हुए पर्दों, क्योंकि आपको अभी सभी को कान में ये लगे हुए हैं, तो आप इसके ऊपर भी अंगूठे को रख सकते हैं, आंखों को ढांक के इस तरह. और फिर धीमी करी सांस लेनी है. और when we say something, we are producing the humming bee sound, that means we are doing the exhalation. Make it sure that your inhalation is less and exhalation more whenever you are doing any deep breathing. तो you have to be careful कि आपको थोड़ा कम लेना है और ज़्यादा छोड़ना है. एम्फेसिस हैज टू बी ऑन, क्योंकि नॉर्मल ब्रीदिंग हम ज़्यादा लेते हैं और कम छोड़ते हैं. प्राणायाम में प्रोसीजर वी जस्ट रिवर्स द प्रोसीजर. यस, मेरे साथ सभी 3 राउंड करेंगे. कान के उठे पर्दों को बंद करें, आंखों को ढांकें, धीमी गहरी सांस लें.
राउंड के पूरा होते दोनों हथेलियों को नीचे ले लें आप, बट यू हैव टू बी वेरी श्योर बिकॉज आई एम डूइंग इट सिंस वेरी लॉन्ग टाइम, तो माई कैपेसिटी इज डेफिनेटली गुड एट दिस टाइम आल्सो। लेकिन आप इस तरह करें कि आपका एक राउंड पूरा होने के बाद यू शुड नॉट फील एनी साई ऑफ हैविंग द नॉर्मल ब्रीदिंग। इन द बिगिनिंग इफ यू जस्ट बी वेरी केयरफुल अबाउट योर ब्रीदिंग। अब मैंने इसमें समझो 3 राउंड किए, तो आप हो सकता है इसके बीच में आपके 4 राउंड पूरे हो जाएं या 5 राउंड पूरे जाएं, नथिंग रॉन्ग इन दैट। यू हैव टू बी वेरी मच मेक श्योर दैट एवरीथिंग एल्स goes, everything in this action goes on with the effortless ease। हमारे गुरुजी हमारी दीदी भी क्लास में जो भी इस वक्त मेरे साथ हैं हमेशा ही कहते थे कि एवरी एक्शन इन योगा इज रिलैक्सेशन। अगर आप कोई भी योगासन कर रहे हैं, प्राणायाम कर रहे हैं, कोई क्रियाएं कर रहे हैं योगा में, अगर आप रिलैक्स नहीं है तो वो योग है ही नहीं। नाउ वी आर मूविंग फॉर द लास्ट प्राणायाम, अ मास्टर की प्राणायाम। मास्टर की प्राणायाम, जब से लॉकडाउन लगा है मैं इस प्राणायाम को मैं आधा घंटा करता था। जैसे ही लॉकडाउन चालू हो गया तो काफ़ी टाइम था, फैक्ट्री बंद थी, मैं इस प्राणायाम को ये प्राणायाम जो है ये प्राणायाम के रूप में हम कर रहे हैं, ओम चैंटिंग। वैसे इसका जो मंत्र होता है वी चैंट इन द फॉर्म ऑफ ओम ओम। इवन विद दिस मंत्र ओम द एंटायर बॉडी गेट्स वाइब्रेटेड। आपका ब्लड सर्कुलेशन, आपका ब्लड प्रेशर, डायबिटीज बढ़ी हुई है या फिर आपका कोई भी पैरामीटर बॉडी का जो है, कोई भी बीमारी हो, थायराइड है या फिर इंसोम्निया, एवरीथिंग विल टेक केयर ऑफ बाय दिस प्राणायाम। रोज के अभ्यास में इस प्राणायाम को 2 मिनट के लिए करना चाहिए फॉर अबाउट 5 to 6 रिपीटेशंस। और अगर आपको बीपी है, डायबिटीज है, इंसोम्निया है, एंग्जाइटी है, डिप्रेशन है, तो इस प्राणायाम को आप 10 से 15 मिनट भी कर सकते हैं या आधा घंटा भी कर सकते हैं, बट एवरीथिंग शुड गो विथ एफर्टलेस ईज। मैंने इस प्राणायाम के द्वारा अपनी पूरी लाइफ में चमत्कार होते हुए देखे हैं। आई गॉट ए 3 वीडियोज ऑन दिस साइंटिफिक चैंट ऑफ ओम, मिरेकल रिजल्ट्स, और तीनों भी वीडियो देख सकते हैं। आपको चाहिए तो आई कैन सेंड यू द लिंक। नाउ सी आई एम डूइंग अगेन स्लो ब्रीदिंग। ओम 2.5 अक्षर का मंत्र है अ, उ एंड म। जस्ट स्टार्ट विथ अ, उसका डबल उ, एंड म हैज टू बी एटलीस्ट 4 टाइम देन दिस। फिर से बता रहा हूं मैं, यू हैव टू से स्टार्ट विथ अ मीन नाभि चक्र। नाभि चक्र पे जैसे इफेक्ट आता है तो एनर्जी इफ गेट्स ब्लॉक्ड बिकॉज ऑफ टेंशन इन द लाइफ, the energy cannot move to the different in the upper chakras, energy keeps on flowing the down chakras, और फिर हम इमोशनली और अनस्टेबली जिंदगी में जीवन जीते रहते हैं। द मोमेंट यू स्टार्ट सेइंग your energy gets close from this manipur chakra, then when you say u it comes to the heart chakra, and ma it comes to this third eye chakra. A u ma means you are channelizing your disrupted energy to the higher chakras, और जैसे एनर्जी यहाँ पर आ जाती है तो आपका जो सारे मेंटल फैकल्टीज है वो आपके स्टार्ट जो है, इसके जो स्पंदन है, इसका जो वाइब्रेशन है। विनायक कापड़ी ने कहा है कि अगर एक व्यक्ति इस तरह प्रणव प्राणायाम ओम करता है तो सामने बैठे हुए व्यक्ति का ब्लड प्रेशर भी नॉर्मल हो जाता है। अगर अपने घर में आप 3 बार भी इस प्राणायाम को इस तरह आप चैंट इस तरह आप करते हैं तो आपके घर का वातावरण का जो भी प्रदूषण है वो भी दूर हो जाता है। दीवारों तक भी उनकी जो छाप होती है, कहीं तनाव होता है घर में, तो वो भी इसे दूर कर सकता है। और क्योंकि इससे हम वी गेट एनलाइटन, तो जैसी ऊर्जा यहाँ पर आती है तो हमारी दिव्य बुद्धि, हमारा सद्वेग जागरूक होता है। तो जीवन से अंधियारे को भगाने के लिए क्या करते हैं हम, वैसे भी लाइट करते हैं। तो यहाँ पे जैसे ही लाइट आ जाती है तो भूत की तरह आपके अंदर जो भी विकार है ना वो भागने लगते हैं। दिस इज अ वंडरफुल प्राणायाम जो आपके बॉडी पर, माइंड पर और स्पिरिट पर भी इफेक्ट डालता है। यस, एक राउंड में आपको दिखाऊं, फिर हम साथ में 3 राउंड करेंगे। धीमी गहरी सांस पहले लेनी है, वेरी स्लोली यू टू यूज योर वेरी स्लो ब्रीदिंग, ताकि हम पेट को यूज कर सकें स्टार्टिंग में, देन चेस्ट, बाद में जो आगे आगे जितनी लंबी सांस होती जाएगी, पेट, छाती, कंधा, गर्दन। These are 4 different respiratory
हमारी जो मसल्स होती हैं, जितना ज़्यादा आप इनको यूज़ करते हैं डीप ब्रीदिंग में, आगे कंप्लीट फुल योगिक ब्रीदिंग में, उतना ही ज़्यादा आपकी हेल्थ जो है बहुत अच्छी रहती है। तो जैसे भी आप सांस ले रहे हैं, ध्यान रहे कि आप 6 काउंट या 5 काउंट लोगे, 2 काउंट रुकोगे, फिर स्टार्ट करोगे अ से ऊ उसका डबल और म उसका 4 टाइम। ये देखिए, मैं पहले एक राउंड करके दिखाता हूँ, फिर आप मेरे साथ करोगे। यस, नाउ जस्ट सी हाउ आई एम डूइंग। If you do this pranayam very correctly, I have seen लोगों का 40 काउंट ब्लड प्रेशर 80 120 नॉर्मल होता है, 40 काउंट बढ़ा हुआ 120 160 2 दिन के अंदर। इस प्राणायाम के 10 मिनट प्रैक्टिस से आई हैव सीन द पर्सन टोटली कमिंग आउट ऑफ हाई बीपी विच वाज नॉट बीन कंट्रोल बाय डिफरेंट मेडिसिन एंड बाय इवन डिफरेंट डॉक्टर्स। तो सभी साथ में करेंगे मेरे, वील बी रिपीटिंग 3 राउंड्स। देखो, मैं 3 बार रिपीट करूंगा, आपको रुकना नहीं है, आप करते चलो। एक राउंड जैसे ही पूरा होता है कंप्लीट, गो फॉर द नेक्स्ट राउंड, गो फॉर द नेक्स्ट राउंड, गो फॉर द नेक्स्ट राउंड। मैं 3 करता हूँ, आप अगर उसके बीच में 5 राउंड रिपीट करते हैं तो नथिंग रॉन्ग दैट, बट विद एफर्टली ईज यू टू गो। आइज क्लोज, बी स्ट्रेट, ध्यान को दोनों ही आंखों के बीच में ले आए, धीमी गहरी सांस। आंखें बंद रखें सभी। 3 बार भी लंबी गहरी सांस लेने के साथ प्रणव प्राणायाम के रूप में स्टार्ट फीलिंग कामनेस ऑफ द माइंड। आपकी सांसें लंबी और गहरी होते ही मन शांत होने लगता है, एकाग्रता बढ़ने लगती है। यस, नाउ स्लोली ओपन योर आईज। देखिए, 65 साल की उम्र के बाद व्यक्ति का इम्यून सिस्टम बहुत कमज़ोर हो जाता है, इसलिए एल्डरली पीपल आर एडवाइज एंड पीपल आर फोर्सिंग देम टू रिमेन इन द आइसोलेशन, ताकि बाहर नहीं निकलें। लेकिन अगर आप प्राणायाम करते रहोगे, बढ़ती उम्र के साथ में आपके दिमाग पर जो असर आता है कि वी लूज द ग्रिप ऑन अवर शार्पनेस ऑफ द माइंड, वो सारी की सारी चीज़ें आप देखोगे। मेरी जो टीचर है प्राणायाम की उम्र से 15 साल बड़ी हैं, शी इज ऑलमोस्ट नाउ 80 ईयर्स ओल्ड। दीदी, आप सुन रहे हैं मुझे? हेलो। तो इसका मतलब ये है कि मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आप इसका प्रैक्टिस रोज रखोगे ना, तो गहरी नींद होगी, इम्यूनिटी सिस्टम आपका अच्छा रहेगा, बीमार कम पड़ोगे, और सबसे बॉडी के सारे जो भी सिस्टम्स हैं ना बॉडी के, मस्कुलर, स्केलेटल, नर्वस सिस्टम, डाइजेस्टिव, रेस्पिरेटरी सिस्टम या सर्कुलेटरी सिस्टम, ये सारे के सारे सिस्टम्स आपके कलेक्टिवली एनहेंस हो जाते हैं, एंड योर इम्यून सिस्टम बिकम्स क्वाइट हाई टू ओवरकम या टू फाइट विद द इनकमिंग, you can say, the different forms of bacteria or viral infection or fungal infection। तो यहाँ पर जो है आई एम फिनिश माई सेशन। अगर आपको कुछ भी सवाल पूछना है, इफ यू वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन, प्लीज कम फॉरवर्ड टू आस्क मी। यस अनिला जी, सी if anybody is writing there, Shaz bhai, you can tell me if anybody is putting the questions here. Sure. Please feel free to ask any questions.
No question. I feel so blessed. I feel so good. भाई thank you so much. Thank you, thank you. थैंक यू भारती जी, थैंक यू हमको रीमा। हाँ मुझे यहाँ पे आप लोग के साथ शामिल होने के लिए कराने के लिए थैंक यू सो मच. I feel इट्स अ so ग्रेट, थैंक blessed. यू। Thank you. Anybody, any question? Please come forward to ask any question. I'm very well experienced person in this field for the last 30 years. If you want to put your question in the chat box, you can put your question in the chat box also. So Dr. Anila will read it for me. Please go ahead. What is Otherwise, the I'll go ahead. should we perform pranayam before the yogasanas or after the yogasanas done? No, see pranayam, Patanjali is designed into 8 angas. Yam, Niyam. दीदी आई हैं स्क्रीन पर, दीदी नमस्ते। शी इज द ग्रेट टीचर टू मी। 30 years बैक आई मेट हिम, और उन्होंने पहले ही दिन में, पहले ही सेशन में धमाका मेरी जिंदगी में किया है। आई वॉज फुल्ली डेडिकेटेड फॉर माई कमिटमेंट टू द योगा सेशन। उसके बाद जिंदगी में मैं आगे बढ़ता चला। टुडे अगर मैं जहां भी हूं एज ए लाइफ कोच और डिफरेंट ट्रेनिंग्स आई हैव टेकन, आई एम इम्पार्टिंग, तो उसका जो श्रेय जाता है वो जाता है जिनको मैं अभी भी दंडवत नमस्कार करता हूं दीदी आपको। आपकी वजह से मैं यहाँ तक पहुंचा हूं, और आज भी जो जो मेरे दिल में इज्जत आपके लिए है, जो रिस्पेक्ट रिगार्ड है, वो हमेशा ही बढ़ता चला गया। नाउ आई वांट टू लिसन फ्रॉम यू प्लीज। वी वांट योर ब्लेसिंग्स, आई वांट योर ब्लेसिंग्स हियर आल्सो। राम जी, यस सब आप ही की मेहनत है। आप आते तो सभी थे क्लास में, लेकिन कुछ है वो आगे बढ़ गए, कुछ वहीं रह गए, कुछ बिल्कुल छूट गए। तो ये आप ही की मेहनत और आपके ही कर्म का फल है जो आपको मिल रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि आपके हृदय में औरों के लिए जो करुणा समाई हुई है, औरों का भला करने की जो इच्छा रही हुई है, वही आपको सबसे आगे ले जाने में मदद करती है। मैं चाहती हूँ कि सदाई आप से करुणा रखते रहे और बहुत बढ़ते रहे, आगे बढ़ते रहे। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। ये लोग यहाँ सभी शुभकामनाएं। यस अशोक भाई, आई विल आंसर फॉर योर क्वेश्चन। अशोक भाई देखिए, अशोक भाई आसन जो है ना, वो जब तक हमारी मांसपेशियों में तनाव है, मांसपेशियों के बीच से पास होती हैं हमारी नर्व्स, अगर वहां जरा भी कड़ापन है, मस्कुलर टेंशन है, द प्राणिक एनर्जी कैन नॉट फ्लो प्रॉपरली। तो हमेशा ही योगासन का जो स्थान है योग में पहले आता है, उसके बाद प्राणायाम। लेकिन अगर आपके पास कम समय है और आप प्राणायाम ही करना चाहते हैं, तो मैं समझता हूं नथिंग इज रॉन्ग इन दैट, कुछ गलत नहीं है उसमें। बट इफ यू आर डूइंग बोथ आसना एज वेल एज द प्राणायाम, so this will enhance the better benefit of this asanas for you. Ashok, is that clear to you? Yes, sir, it is clear. So, but should we start practicing of asana with the chanting of Om? देखिए, अगर हम कोई प्रार्थना से या ओम चैंटिंग से स्टार्ट करते हैं, हम सारे योगा क्लासेस उससे स्टार्ट, उससे क्या एक वातावरण बनता है। घर से हम आते हैं, उस वातावरण को चार्ज करने के लिए, अपने आप को भी चार्ज करने के लिए, अगर हम पहले कुछ प्रार्थना बोलते हैं, 3 बार ओम चैंटिंग करते हैं ना, तो उसमें क्या होता है, हमारी सांसें लंबी गहरी होने की वजह से अवर माइंड बिकम मोर रिसेप्टिव बिकॉज ऑफ द मोर कॉन्सेंट्रेशन। तो दैट इज बेटर इफ यू स्टार्ट विद ओम चैंटिंग। बाकी इसको हम प्रयोग के रूप में, प्राणायाम के रूप में हम इसको स्थान लास्ट में देते हैं, क्योंकि पहले सारे क्लेंजिंग प्रोसेस, कपालभाति, भस्त्रिका, रिफाइनिंग, हम जो एपरेटस है ना, जो रेस्पिरेटरी सिस्टम के एपरेटस हैं, उनको सबको हम एक्टिवेट करते हैं ताकि हम उससे ज्यादा अच्छे से काम ले सकें। सो इसके जो 7 प्राणायाम रोज होते हैं, रोज के अभ्यास 7 प्राणायाम कराते हैं, वो सीक्वेंस में ही जाते हैं। समझ आया आपको? Okay, sir. Thank you, sir. Thank you. I'll If somebody help, yes, yes, please. भाई मुझे रिफाइनिंग एक्सरसाइज थोड़ा सा दोबारा थोड़ा सा बता देंगे? हेलो अनिला जी। मैम रिफाइनिंग एक्सरसाइज हाँ, वो रिफाइनिंग एक्सरसाइज जानना चाहती हैं भारती। हाँ, If you can please clarify the refining exercise. सी रिफाइनिंग एक्सरसाइज मतलब
अगर आप जिंदगी में किसी भी बात को लेकर परेशान हैं, दुखी हैं, अशांत हैं, नाराज हैं, चिंतित हैं, भयभीत हैं या गिल्ट फील कर रही हैं, एट दैट टाइम योर ब्रेथ बिकम्स वेरी शैलो, कंसंट्रेशन पावर बहुत ज्यादा कम हो जाता है, व्यक्ति सही न तो किसी को परख सकता है न निर्णय कर सकता है। ऐसे समय पर रिफाइनिंग प्राणायाम मतलब मन में ठहरे हुए जो भाव होते हैं किसी विशेष परिस्थिति के प्रति, व्यक्ति के प्रति, वो जल्दी से हम उसको अगर हम बाहर नहीं निकाल पाते, दिस प्राणायाम रियली हेल्प्स यू टू रीट्यून योर माइंड। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम क्या करते हैं, एक ही सांस के 5 टुकड़े, अ सिंगल ब्रेथ Yes, yes. constituting of 5 sections. One complete breath is comprising of 5 20 20 20 20%, हम 5 बार लेते हैं और उसके बाद पूरा जैसे ही सांस को बाहर फेंकते हैं ना मुंह के साथ में, तो बॉडी का सारा जो टॉक्सिन है वो निकल जाता है बाहर। और दूसरी चीज, जो ठहरा हुआ मन है, मैं इसको माफ नहीं कर सकती, मैं इसके साथ नहीं चल सकती, अब मेरा जीना इसके साथ चलना बहुत डिफिकल्ट हो गया है, हम अपने ही मन में जो ग्रंथियां बांध कर रखते हैं ना, जो हमको आगे बढ़ने से रोक देती हैं, अपने ही अंडर यूनिवर्सल के फ्लो को आने से हम रोक देते हैं। तो ये प्राणायाम जो बहुत ज्यादा मदद करता है रिफाइनिंग का। अगर आप यूट्यूब में अगर आप जाओगे ना, गूगल में आप जस्ट टाइप करो रिफाइनिंग एक्सरसाइज, आपको इसका इतना डिस्क्रिप्शन मिलेगा, इसके 6 प्राणायाम्स हैं, तो वहां पे आप डिटेल पढ़ सकते हैं। तो आप अगर मुझे चाहेंगे तो आई कैन सेंड यू द लिंक आल्सो वेयर यू कैन जी, जी। डीप स्टडी Please. वो कर सकते हैं। दिस रिफाइनिंग दिस जस्ट इज यू द फर्स्ट टाइम आज पहली बार मैं एक्सपीरियंस कर रही हूँ भाई, इसलिए ना रिफाइनिंग एक्सरसाइज का पहले तो मैं आपको किया। यस। थैंक यू सो मच, थैंक यू। आप लिंक एनीबॉडी? भेज दीजिएगा। हाँ, मैं भेज दूंगा, लिंक भेजूंगा आपको। जी मैं यस, थैंक एनीबॉडी यू एल्स? Mr. Balram, यस सर। Ayushi would like you to share the sequence of the pranayam, or maybe the देखिए, time हाँ could हाँ, help. यस यस यस। देखिए, प्राणायाम में सबसे पहले अपनी नासिका को साफ करना चाहिए। देखिए, प्राणायाम के सीक्वेंस को बताता हूं मैं। रोज के अभ्यास में इवन स्वामी रामदेव जी सजेस्ट दैट प्राणायाम हैज टू बी डन फॉर 20 मिनट्स, जहां पर सातों के सातों प्राणायाम करने चाहिए। अगर आपको बहुत ज्यादा तकलीफ है, समझो नींद नहीं आती है, तो भ्रामरी प्राणायाम को स्पेशल आप ज्यादा करो। अगर आपको बहुत ज्यादा खांसी की तकलीफ है या आपकी छाती में बलगम ज्यादा रहता है, तो आपको भस्त्रिका का प्रैक्टिस 2 मिनट की जगह 5 मिनट करना चाहिए, राइट। अगर आप बहुत ज्यादा टेंस रहते हैं तो फिर प्रणय प्राणायाम ओम आपको थोड़ा टाइम बढ़ाना चाहिए। लेकिन in everyday practice you must include all the pranayamas in your regular practice, जिसको हम 7 प्राणायाम कहते हैं। 7 प्राणायाम में सबसे पहला जिसको हम प्राणायाम नहीं करते, जस्ट ओपनिंग द नॉस्ट्रिल, जो पहले मैंने बताया आपको। उसके बाद नंबर 1 बिकम्स कपालभाति। हालांकि रामदेव महाराज टेक्स भस्त्रिका इज द नंबर 1 प्राणायाम, लेकिन हमारे जो ओरिजिनल योग के टेक्स्ट कहते हैं, जो 5000 साल से चले आ रहे हैं, स्वातिराम सूरी, हठ प्रदीपिका या पतंजलि, वो सभी ये कहते हैं कि आउट ऑफ द 6 क्लेंजिंग प्रोसेस कपालभाति इज वन ऑफ द क्लेंजिंग प्रोसेस जो आपको पहले करना चाहिए, जिसका समय होता है, देखो प्राणायाम टोटल करने चाहिए 7, समय कितना होना चाहिए 20 मिनट का। अगर कम समय तो आप इसको आधा आधा कर सकते हैं। सी 7 प्राणायाम टाइम 20 मिनट। तो पहला 2 प्राणायाम से मास्टर की होते हैं, पहला है कपालभाति और 5वें नंबर पर आता है अनुलोम विलोम। ये दोनों ही प्राणायाम जो है ना मास्टर की प्राणायाम है, इनको समय दिया जाना चाहिए 5 मिनट फॉर ईच प्राणायाम, बिकॉज दीज आर द मास्टर कीज। बुद्ध प्राणायाम नंबर 1 इज कपालभाति, नंबर 5 अनुलोम विलोम। बाकी के जो प्राणायाम्स हैं उसमें समय 2-2 मिनट देना चाहिए। सेकंड नंबर पर आता है भस्त्रिका प्राणायाम, जिसका समय 2 मिनट, कपालभाति 5 मिनट 300 स्ट्रोक्स, भस्त्रिका का समय 2 मिनट होता है। अगर मैक्सिमम आपको करना है भस्त्रिका, आप बहुत ही लेथार्जिक फील कर रहे हैं, बहुत ही इनएक्टिव फील कर रहे हैं, तो भस्त्रिका अगर 5 मिनट करोगे ना, तो मैं तो कहता हूं कि उसी दिन ही विल स्टार्ट फीलिंग वाइब्रेंट। सच ए वंडरफुल प्राणायाम। भस्त्रिका मीन्स एक्टिवनेस, you are bringing the blood circulation to the entire body very much, you can say improved। तो भस्त्रिका 2 मिनट। उसके बाद हम तीसरे नंबर पे लेते हैं प्राणायाम, जो मैंने कराया है वो आपको कराया, वो है रिफाइनिंग। उसका समय वैसे 1 मिनट होता है। उसके बाद हम कराते हैं बाह्य प्राणायाम, जो मैंने यहाँ नहीं कराया है। उसके बाद 5वें नंबर पे आता है बाह्य प्राणायाम, मैंने यहाँ नहीं करवाया टाइम के अभाव की वजह से। 5वें नंबर पे आता है अनुलोम विलोम प्राणायाम, और 6ठे नंबर पर Some network. I think there's a technical issue. He's back. Okay.
Am I clear now, Shaz bhai? Yes, yes, sir. या We can hear you बीच now. में आपका कनेक्शन कट गया था और ठीक, फिर से मैं लेकिन रिपीट करता हूँ। रोज की प्रैक्टिस में टाइम गिवन टू द प्राणायाम, द मोस्ट आइडियलिस्ट टाइम इज 20 मिनट्स। नंबर ऑफ प्राणायाम आर 7। नंबर 1 प्राणायाम इज कपालभाति। नसल प्रशिक्षण करते हैं कपालभाति, शुड बी डन फॉर 5 मिनट्स, 300 स्ट्रोक्स। एंड फिफ्थ नंबर प्राणायाम, विच इज आल्सो वन ऑफ द मास्टर कीज, हैज टू बी डन फॉर 5 मिनट्स टाइम। और बाकी के जो 5 प्राणायाम है 2 मिनट्स ईच। सेकंड इज भस्त्रिका, थर्ड इज रिफाइनिंग, एंड फोर्थ इज एब्डोमिनल ब्रीथिंग के लिए करते हैं हम लोग बाह्य प्राणायाम। फिफ्थ में अनुलोम विलोम है, और बाद में भ्रामरी फॉर 2 मिनट्स एंड अनुलोम विलोम प्राणायाम फॉर 2 मिनट। अगर आप if you go with this sequence, I'm telling you miraculous your performance of pranayam will be there. मैंने खुद देखा है कि जब मैं प्राणायाम शुरू करता हूँ, सुबह को रोज करता हूँ मैंने देखा है कि व्हेन आई फॉलो दिस सीरीज ना, तो मेरे यहाँ जो भी कंजेशन है थोड़ा बहुत भी इतना क्लियर हो जाता है कि नासिका इतनी अच्छे से खुल जाती है ना कि लगता है कि मेरे अंदर है ना इन प्राणों ने नई जान भर दी है। सो दिस इज द सीक्वेंस। आप इसका अगर डिटेल में जाना चाहें तो मैं ऑल द वीडियोज आर देयर ऑन यूट्यूब, इफ यू वांट यू कैन पर्सनली टेल मी टू सेंड द लिंक, या अगर वहां ढूंढना चाहें तो यू जस्ट टाइप बलराम तलरेजा इन यूट्यूब एंड जस्ट टाइप देयर प्राणायाम, you'll get all the pranayamas. I've got so many links connected to in that video. I can keep on sharing with you. Yes, Bharti, is that clear to you? Yes. I think Bharati has just left the meeting. But nevertheless, I think we can. One last question, Shaz. या लेट्स टेक द लास्ट क्वेश्चन। प्रियंवदा ने पूछा है। Priyamvada has asked, in refining breathing, it should be abdominal breathing. नहीं, देखिए एब्डोमिनल ब्रीदिंग सिर्फ कपालभाति होती है, या तो फिर एब्डोमिनल ब्रीदिंग सेपरेट हम कराते हैं। बेली ब्रीदिंग, एब्डोमिनल ब्रीदिंग वो अलग होती है, जहां पर हम है ना सिर्फ पेट को इन्वॉल्व करते हैं। नाभि के नीचे जो भी तकलीफें होती है, घुटनों का दर्द है, पैरों का दर्द है, सेक्सुअल ग्लैंड्स की कोई तकलीफ है, वी डू टेक दैट इन द सेक्सुअल ब्रीदिंग बाय एब्डोमिनल ब्रीदिंग, राइट। लेकिन यहाँ पर फिर से आप समझें, रिफाइनिंग में हम एक ही सांस के 5 टुकड़े करते हैं। 5 टुकड़े जब करोगे तो पांचों ही बार आपकी सांस जो है ना वो एक्चुअली पेट में ही जाती है, पेट में ही जाती है। ऊपर भी आ सकती है अगर आपकी कैपेसिटी है उन टुकड़ों को ज्यादा लंबा करने की, तो यू कैन हैव दिस कंप्लीट ब्रेथ, वन कंप्लीट ब्रेथ यू टेक। मैंने यह नहीं कहा कि आपको पेट में ही सांस भरनी है। वन कंप्लीट ब्रेथ कंसिस्टिंग ऑफ 5 डिफरेंट, उसके जो कंपार्टमेंट्स में लेनी है एक ही सांस को, और फिर थोड़ा रुके, वी एक्सहेल द एयर आउट। आप जिसने सवाल पूछा यू कॉन्टेक्ट में, मैं आपको इसका ना पूरा वीडियो और ऑडियो शेयर करूंगा कंप्लीट इसका, आई कैन शेयर, जहाँ पे आप आराम से देख सकते हैं मोर इन द मोर डिटेल्स। यस, कैन वी गो अहेड शाद भाई नाउ? यस, लेट्स गो अहेड। अनिला प्लीज। देखिए यहाँ पे मैं एक बात पहले कहना चाहूंगा आपसे कि हम रैपिड माइल के अंडर में एवरी वेडनेसडे मीट हियर, वी आर ऑल द 4 एक्सपर्ट्स हियर टू गाइड यू टू मेक अ ग्रेट चेंज इन योर लाइफ। हमारा एम यही रहता है कि हम आप सभी लोगों को प्रेरित करें ताकि आप भी हमारी तरह अपनी ज़िंदगी में ऐसे बदलाव लेकर आओ ताकि यू कैन लिव द लाइफ एबंडेंटली। उसके ही अंडर में हम कई सारे प्रोग्राम्स करते हैं, जैसे डॉक्टर अनिला ने लास्ट टाइम लॉ ऑफ अट्रैक्शन एबंडेंस किया था। मैंने लास्ट वीक में 2 EFT के लेवल्स लिए हैं, EFT लेवल 1 एंड EFT लेवल 2। हम दिसंबर में EFT लेवल 3 ले रहे हैं दिसंबर के फर्स्ट वीक में, और आगे जाकर लेवल 4 भी लेंगे, जहां से मैंने देखा है कि इतनी सारी टेक्निक्स मैं जानता हूँ, इतने सारे टेक्निक का ट्रेनर मैं बना हूँ, लेकिन मिरेकलसली अगर कोई टेक्निक काम करती है इन ऑल द एरियाज वेयर नथिंग वर्क्स, इट इज द EFT विच इज वर्किंग। आप भी अगर चाहते हैं कि जिंदगी के हर प्रॉब्लम को एक ऐसा सेल्फ हीलिंग टूल या यू कैन से प्रेस बटन यूर फिंगर टिप्स अगर सीखना चाहते हैं तो प्लीज कम फॉरवर्ड। यहाँ पर हमारे साथ जो लेवल 1 एंड 2 कंप्लीट किया है वो प्रिया जी, आप हैं यहाँ पर? प्रिया जी, प्रिया? Yes, sir, I'm here. हाँ, प्लीज आप थोड़ा बताइए ना, आपने लेवल 1 और 2 कंप्लीट किया रिसेंटली, एंड व्हाट वे इट इज हेल्पिंग, या आप क्या सजेस्ट करना चाहोगे इस EFT के लिए? यस प्लीज। Good evening to all of you. So good to see you all here. Well, EFT is called magical tool, as Sir often calls it, and
For a reason, it is called a magical tool. For last 1.5 year around, I had been like researching about EFT, and even like the high level motivational speakers like Wayne Dyer, Louis Hay, they all swear by this tool that is called EFT tool. They speak highly about it. In fact, one of my favorite author, like Mr. Van Dyer, he said, "Don't be skeptical about it. Just go for it. It works." Like he gave so much assurance about it. And my experience, like I'm so very much not for the sake of saying only, I'm saying I genuinely mean it. I'm so much excited about this thing, and I'm very fortunate that I came in contact with Balram sir and this mine, like Rapid Mile, and it was a like a gift as if universe has given me. Day before, like I joined my level 1, I was talking to one of my uncle in Singapore about EFT, without knowing that this class will be like conducted on very next day. I was talking and he was talking very highly about it, and I was thinking when I will get the chance to learn like EFT. And very same day in evening, I got a message luckily from Balram uncle that there will be a class for EFT, and it was so good, and it was a magical experience. Whole day I was so excited. During the class, I was so excited, and one more thing I would like to add here, you really become hopeful, amazingly hopeful and assured, even you can say, when you learn things like this. You get a confidence that nothing is impossible in life in any field. So this is what my experience is for EFT. Thank you. Thank you for making me part of it. Thank you so much. Thank you, Priya ji. So, anybody interested before going to level 3, you can contact Rapid Mile and we'll definitely arrange the level 1 and 2. One level consists of 1 day, level 2, 2 days, 4 hours each day. Then level 3 will be of 3 days and level 4 will be of 4 days. मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं, अगर आप जिंदगी में रहनुमा बनकर जिंदगी जीना चाहते हैं तो इसको सीखो, अपनी जिंदगी को बेहतर बनाओ, खूबसूरत बनाओ, जिंदा दिल बनो, और the entire suffering around the world, what we are finding, you can be a boon to them. आप उन लोगों के लिए एक वरदान बनकर जीवन जी सकते हैं। देखिए चारों तरफ आज जो वातावरण बना हुआ है, वायुमंडल बना हुआ है, हर कोई अपने आप को उसमें फंसा हुआ महसूस करता है, लेकिन EFT एक ऐसा जबरदस्त टूल है ना, जहां से पूरी दुनिया के लोग मुझे कांटेक्ट करते हैं। आई हैव बीन इनटू दिस काउंसलिंग ऑफ थ्रू EFT फॉर द लास्ट मोर देन 7 years नाउ। तो जिन 5 लोगों ने ज्वाइन किया है, दे आल्सो हैड टेकन माय कंसल्टेशन। तो इस चीज में दूसरी कोई राय नहीं रखे। व्हाट रैपिड माइल कीप्स ऑन प्रोवाइडिंग विद डिफरेंट सेशंस ऑन इन डिफरेंट एरियाज, वी आर डेफिनेटली हियर टू ब्रिंग ए चेंज इन योर लाइफ। सो प्लीज हिम्मत मर्दा मदद खुदा, आप है ना विल रखो, ये मुझे शाह, जनीला जी, संजीव सर की, बलराम की सर की जिंदगी बनाना है, दूसरों के जिंदगी में प्रेरणा का स्रोत बनकर जीना है, एंड दैट इज द पर्पस ऑफ अवर लाइफ। इसी पर्पस के लिए भगवान ने हमको भेजा है यहाँ पे। तो दीज डिफरेंट वर्कशॉप वी कीप ऑन गिविंग यू अंडर विद डिफरेंट ट्रेनर्स, दे रियली हेल्प यू आउट। और वेडनेसडे का प्रोग्राम तो आपको कभी मिस करना ही नहीं चाहिए। जैसे लोग मानते हैं ना कि मुझे मंदिर में जाना है इस दिन पर, वैसे वेडनेसडे इवनिंग आप एक निश्चय अपने मन में कर ले को, तो बाय व्हेन द रैपिड माइल सेशन स्टार्ट्स ऑन एवरी वेडनेसडे विद डिफरेंट टॉपिक। जैसे अनिला जी नेक्स्ट टाइम बोलने जा रही हैं सेल्फ लव, सच ए वंडरफुल टॉपिक। दिस इज वी कीप ऑन पुटिंग डिफरेंट टॉपिक्स हियर। सो प्लीज दिस रैपिड माइल, अगर आप कनेक्ट हुए हैं यहाँ से, तो ये निश्चित ही जानना कि अगर रैपिड माइल को अगर आप प्यार से लोगे तो ये आपकी जिंदगी में परिवर्तन का एक ऐसा जरिया बन जाएगा ना, योर लाइफ विल बी ट्रूली ब्लिसफुल एंड लाइफ विल बी अमेजिंग। क्रिएशन विल बी क्रिएटिंग योर लाइफ मैजिकली एंड miraculously. Yes, Shad, I have finished here. Thank you very much, Balram sir, for taking this amazing session. And it was a very good learning for me as well. And hope everybody learned something new from this pranayam session today. And I got to know the importance of pranayam as well. So I'll start putting it into my daily practice also. Thank you very much once again. Back to you, Anila. Thank you, everybody, for being here. Thank you, Balramji, for taking such a wonderful session. I also learned a lot of new things today.
And we look forward to seeing all of you next Wednesday evening. Please join the WhatsApp group. Stay in touch. Every week we take up new topics. So thank you once again to each and every one of you. Good night. Thank you so See, much. एक मिनट Thank एक you. बात मुझे बोलनी है. One thing I would like to say to everybody. See, yoga is a practical science. A tons of asanas and pranayamas I know, but unless I practice, ऐसा कहा जाता है, ounce of practice is much more important than the tons of theory. So yoga is a practical science. आपने आज सीखा है, तो आप इसको ना रोज अगर अभ्यास करोगे, तो जब इसके बेनिफिट्स आप एक्सपीरियंस करना शुरू करोगे ना, आपको इसके करने से प्यार हो जाएगा ऑटोमेटिकली. आई कैन नॉट लिव विदाउट डूइंग दिस. आई डू मेडिटेशन ट्वाइस अ डे, बट विदाउट आसनास एंड प्राणायाम आई रियली फील माई सेल्फ समथिंग आई एम मिसिंग टुडे. तो सभी को तहे दिल से बहुत शुक्रिया. बड़े प्यार से इत्मीनान से सुना है आपने. और मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी की बात है कि जिसने मुझे प्राणायाम के फील्ड में लाया है, दीदी दमयंती बेन बोधाना, वो भी आज हमारे साथ हैं. आई एम रियली फीलिंग प्राउड कि मैंने आज उनके सामने, इतने लोगों के सामने, विद दिस अंडर द कैनोपी ऑफ रैपिड माइल आई हैव परफॉर्म. दीदी आप हैं यहाँ पर? शी इज लेफ्ट. ओके, सो गुड नाइट टू एवरीबॉडी. She is still there. Good night. So, दीदी आप हैं ना? Very nice session. दीदी आप बताइए, बलराम आपके साथ जब 30 साल पहले, आपने, मुझे याद है दीदी, आपने मुझे कपालभाति करने के लिए कहा था कि मैं आपको अपने साथ नहीं लूंगी, तुम्हारे चेहरे पे बहुत एक्सप्रेशन आ जाता है, पहले एक्सप्रेशन ठीक करो. मैं कपालभाति करते ही है ना, बहुत ज्यादा फेशियल एक्सप्रेशन पे आ जाता, तनाव में आ जाता था. बट यू टोल्ड मी अनलेस यू क्लियर योर फेशियल एक्सप्रेशन इन कपालभाति, आई कैन नॉट टेक यू अहेड विथ मी. एम आई राइट दीदी? आपको याद है कि नहीं ये बात? It's my immense pleasure to see you over here. क्योंकि परफेक्शन तो चाहिए ही चाहिए, तब वरना इजी हो जाएगा ना. Yeah. I can proudly say, Didi, the words you were teaching me 30 years back in our classes, the same words still I keep on, that the things keeps on flowing from my mind still, because I was so adjusted, so comfortable with those words, and the people are enjoying. जीवन में सीख करके ग्रहण करना और उतारना सबसे बड़ी बात है, नहीं तो कोई मतलब नहीं है. तो दीदी शाद भाई जो है ना, ही इज द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ रैपिड माइल. डॉक्टर अनिता, शी इज द लॉ ऑफ अट्रैक्शन ट्रेनर. संजीव भाई एक हैं जो खास करके मनी का सेशन लेते हैं, एबंडेंस मनी, मनी कॉन्शियसनेस, यू एंड मनी. तो ये चार हम लोग मिलके है ना, इसके नीचे ट्रेनिंग देते हैं. और मैंने तो आज आपको कांटेक्ट नहीं किया, लेकिन मेरा मैसेज पढ़ के आपने बोला कि कैसे ज्वाइन करते हैं, तो आई वाज वेरी डिलाइटेड एंड आई रादर पर्सनली कॉन्टेक्टेड यू दैट यू बी हियर टुडे. इट इज माय ग्रेट प्लेजर. थैंक यू वेरी मच वंस अगेन. ओम शांति. Om Yes, Shanti. Shaz bhai, we can Om close Shanti. the Thank you everyone for being here. Thank you. And Thanks for the wonderful session.